الضاد الجميلة أنت أملي وحبي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج اللغة العربية. آج تک جو ہم نے 3 کلاسیں اٹینڈ کی ہے ان میں جو ہم نے اہم ترین چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انا کا مطلب ہے میں. جس طرح انگریزی میں آئی استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم عربی میں انا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں انا فردوس العمری انا محاضر انا من باریگام بلواما. اسی طرح فیمیل کہتی ہیں انا زینب انا طالبۃ انا من سری نگر. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انا آئی ایم زینب آئی ایم زینب انا طالبۃ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ انا من سری نگر آئی ایم فرام سری نگر. اس کے بعد جو ہم نے دوسرا نقطہ سیکھا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں اس کے لیے ہم ایک طریقہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہم پوچھتے ہیں من انت. اگر ہم نے لڑکے سے پوچھنا ہے من انت تو وہ جواب میں کہتا ہے انا پھر اپنا نام. اگر اس کا نام محمد ہے تو وہ بولے گا انا محمد انا حامد انا احمد انا شاکر انا فرحان. جو اس کا نام ہوگا اکارڈنگلی وہ بتائے گا. انا استعمال کرنے کے بعد اپنا نام. انا کا مطلب ہے آئی ایم پھر اپنا نام. جیسے یہاں پہ لکھا ہے انا محمد آئی ایم محمد. اسی طرح من انتی ہم پوچھتے ہیں جب ہم نے پوچھنا ہو کسی فیمیل سے تو ہم کہتے ہیں من انتی آپ کون ہیں. تو اگر یہ چونکہ فیمیل کو ہم پوچھتے ہیں تو جو نام بتایا جائے گا وہاں سے وہ بھی فیمیل کا ہی نام ہوگا. جیسے انا عائشہ انا مریم. ہم کسی فیمیل سے نام پوچھیں گے جیسے ہمارے سامنے ایک لڑکی ہوگی تو ہم اسے کہیں گے من انتی تو وہ اپنا نام بتائے گی لیکن اس نام بتانے سے پہلے وہ بتائے گی انا مریم انا عائشہ. تو جو بھی اس کا نام ہوگا وہ بولے گی. اسی طرح انتا کا ایک اور استعمال یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے من اینا استعمال کریں گے. ہم کہیں گے من اینا انتا میل کو آپ کہاں سے ہیں فرام ویئر یو آر من اینا انت. اور وہ جواب میں بولے گا انا من شوپیان انا آئی ایم من فرام شوپیان شوپیان. اسی طرح فیمیل سے پوچھیں گے من اینا انتی فرام ویئر یو آر تو وہ جواب میں کہے گی انا من جہاں سے پھر وہ ہوگی وہ جگہ وہ بتائے گی. جیسے یہ پلوامہ سے اگر ہیں تو یہ بولے گی انا من بلوامہ. اگر سری نگر سے ہے انا من سری نگر. یا اسی طرح انا من کشمیر انا من الہند. تو جو جگہ ہوگی یا جو گاؤں ہوگا اس کا نام بتایا جائے گا. یہ ہم نے ایک طریقہ سیکھا تھا کہ اگر ہم نے کسی سے نام پوچھنا ہے تو ہم اسے سمپل کہیں گے من انت اگر وہ میل ہے اور اگر فیمیل ہے تو من انتی. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ جو ہم نے اس کے بعد سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسے پوچھیں گے اگر لڑکا ہے تو ہم کہیں گے مسموکا مسموکا مسموکا. ما مطلب کیا ہوتا ہے, اسم کا مطلب ہے نام, کا مطلب آپ کا لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کی لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں کو ہم پوچھیں گے مسمو اور پھر کا اگر مذکر ہے اور اگر مؤنث ہے تو کی. مسمو کا مسمو کی. مسمو کا لڑکے کو پوچھیں گے اور مسمو کی فیمیل سے پوچھیں گے. جیسے آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ لکھا ہے المذکر. المذکر کو پوچھنے کے لیے ہم کہیں گے مسموکا اور جواب اس کا ہوگا اسمی مائی نیم از پھر وہ اپنا نام بتائے گا. جیسے یہاں پہ ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے احمد تو وہ بولے گا اسمی احمد. سوال پوچھنے والا پوچھے گا مسموکا اور جواب دینے والا بولے گا اسمی پھر اپنا نام.
इसी तरह फीमेल को नाम पूछना है तो हम पूछेंगे उसे मसमुकी, मसमुकी, और वो जवाब में बोलेगी इसमी, फिर जो उसका नाम होगा वो मेंशन करेगी, इसमी सलमा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सलमा, तो वो अपना नाम मेंशन करेगी। यहाँ तक जो है हमने पहले सीखा था। इसके बाद जो हमने एक और नुक्ता सीखा था वो ये था कि इस्मुल इशारती लिल करीब। इस्मुल इशारा हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिल करीब, लिल करीब बोलते हैं हम नज़दीक को, करीब बोलते हैं हम नज़दीक के लिए, लि मतलब होता है लिए, तो करीब के लिए, करीब के लिए इस्मुल इशारा। कौन सा इस्मुल इशारा हम इस्तेमाल करेंगे? जब कोई चीज़ या कोई शख्स या कोई जगह हमारे नज़दीक हो। जिस तरह हम अंग्रेजी में दिस इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं दिस इज अ पेन, ये एक कलम है उर्दू में। तो अरबी में क्या बोलेंगे? अरबी में इसके लिए दो लफ्ज़ हमारे सामने अभी है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक है हाजा और दूसरा है हाजिही, हाजा और हाजिही। अंग्रेजी में सिर्फ एक है दिस, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल। लेकिन अरबी में लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है। तो क्या है मुज़क्कर के लिए और क्या है मुअन्नस के लिए? इस तरह करके हम इस्मुल इशारा को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस्मुल इशारा लिल करीब, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है मुज़क्कर के लिए और एक है मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर यानी मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजा, और मुअन्नस यानी फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजिही, हाजा, हाजिही। आप हाजा के लिखावट पे आप ध्यान दें तो हाजा जो लिखा हुआ है, इस हा जो यहाँ पे पहले लिखा है हा, इस पे असल में है खड़ी जबर, तो हा खड़ी जबर हा, जाल अलिफ जबर जा। इसी तरह हाजिही में भी हा के ऊपर खड़ी जबर है और फिर जाल और फिर हा, तो ये हाजिही, इसको इसी तरह से लिखना होगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमारे सामने कोई मुज़क्कर है तो हम हाजा इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे सामने कोई मुअन्नस चीज़ या कोई मुअन्नस औरत है तो हम उसके लिए हाजी ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे सामने एक लड़का है, लड़का है तो हमने बोलना है कि दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। आप मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि इंग्लिश और उर्दू में इसमें कोई फर्क नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। वहां लड़के को भी बोलेंगे ये एक लड़की है और लड़के को बोलेंगे ये एक लड़का है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अंग्रेजी में दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, तो दिस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में अगर लड़का है तो हम इस्तेमाल करते हैं हाजा, जैसे हाजा वलदुन, ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। अगर ये लड़की होती यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो लड़की की तस्वीर है, अगर ये लड़के की तस्वीर ना होती बल्कि एक लड़की की तस्वीर होती, तब हम हाजा बिंतुन नहीं कहते। बिंतुन माने लड़की, हम हाजा बिंतुन नहीं कहते, बल्कि जो हमने मुअन्नस के लिए सीखा है कि मुअन्नस के लिए हाजिही का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पर हाजिही बिंतुन इस्तेमाल करते। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़की है, तो ये मुअन्नस है, मुअन्नस होने की वजह से हम इस्मुल इशारा हाजिही इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे हाजिही बिंतुन, हाजिही बिंतुन। इसके बरअक्स हमने अभी बोला जो लड़का था तो हमने बोला हाजा वलदुन, हाजा वलदुन। इसी तरह अगर कोई भी मुज़क्कर हो तो हम उसके लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, तो हम बोलेंगे हाजा मोहम्मद,
क्यों बोलेंगे हाजा? क्योंकि मोहम्मद मुज़क्कर है। इसी तरह हाजा ज़ैदुन, हाजा ज़ैदुन, हाजा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ज़ैदुन मुज़क्कर है। इसी तरह हाजा तबीबुन, तबीबुन का मतलब है मेल डॉक्टर, तो हम हाजा इस्तेमाल करेंगे न कि हाज़िही। इसी तरह हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज ए टीचर। हाजा तबीबुन, दिस इज ए डॉक्टर। हाजा मुहम्मदुन, दिस इज मुहम्मद। हाजा ज़ैदुन, दिस इज ज़ैद। तो आपको हाजा और हाजी की फ़र्क मेरे ख्याल से वाज़िया हो चुकी होगी। अब हाजी की और मिसालें आप देखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक औरत है जिसका नाम है फातिमा, तो हम बोलेंगे हाज़िही फातिमा। एक और औरत है, इसका नाम है आयशा, तो हम बोलेंगे हाज़िही आयशा। एक फीमेल डॉक्टर है, तो हम बोलेंगे हाज़िही तबीबतुन। जब एक मुज़क्कर था तब हमने बोला था हाज़ा तबीबुन, अब फीमेल है तो हम बोलते हैं हाज़िही तबीबतुन। इसी तरह नीचे आप देखें, हाज़िही मुदर्रिसतुन, हाज़िही मुदर्रिसतुन, हाज़िही मुदर्रिसतुन। तो मुदर्रिसतुन फीमेल टीचर। जब हमने मुज़क्कर वाला पढ़ा था तो वहां पे था हाज़ा मुदर्रिसुन, हाज़ा मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन मेल, और इसके लिए हमने हाज़ा इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हाजी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मुदर्रिसतुन जो कि फीमेल है। अब इसके बाद जो एक और नुक्ता हमने सीखना है वो ये है कि हम इस्म की तकसीम कर सकते हैं दो हिस्सों में। जो इस्म होगा उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तकसीमुल इस्मी मिन हैसुल अक्ल, अक्ल के एतबार से इस्म की किस्में। इससे पहले हमने एक तकसीम पढ़ी थी, तकसीमुल इस्म मिन हैसुल जिन्स, जिन्स के एतबार से, जेंडर के एतबार से इस्म की तकसीम। तो उसमें हमने दो किस्में बताई थी, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। अब हम एक और तकसीम पढ़ रहे हैं, तकसीमुल इस्म मिन हैसुल अक्ल, अक्ल के एतबार से इस्म की तकसीम। अक्ल के एतबार से दो ही किस्में होंगी, एक है आकिल जिसके पास अक्ल हो, और दूसरा है गैरुल आकिल जिसके पास अक्ल ना हो। आकिल और गैर आकिल। आकिल में कौन कौन आता है? एक आता है इसमें इंसान, इंसान ह्यूमन बीइंग। दूसरा जिन, जिन। और तीसरा है मलक, फरिश्ते। इंसान आते हैं इसमें, जिन आते हैं, और फरिश्ते आते हैं, और अल्लाह। तो ये इन चार कैटेगरियों को अगर हम जिक्र करेंगे, चाहे मोहम्मद अहमद नाम हो, आयशा मरियम नाम हो, या जिन्नों में भी यही नाम होते हैं, तो या फरिश्ते हों, जिब्राइल का जिक्र हो, या किसी मिकाइल का जिक्र हो, या किसी और फरिश्ते का जिक्र हो, तब हम इसको आकिल का जो है, आकिल के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अल्लाह के बारे में अगर हमने कभी सवाल करना हो तो इसको हम आकिल की कैटेगरी में रखते हैं। और गैर आकिल की कैटेगरी में हम रखते हैं नबातात को, जैसे बुर्तकाल, तुफ़ाहुन, या शजरतुन, या कोई भी पेड़ हो तो उसको नबातात, वो हम गैर आकिल में रखते हैं। जमादात, जैसे पत्थर है, हाँ, या ईंट वगैरह जो भी है उसको हम जमादात में रखते हैं। या इसी तरह कुर्सी, कलम वगैरह वगैरह, उनको हम गैर आकिल में रखते हैं। और हयावान, हयावान, हयावान में आते हैं बकरतुन आता है, सौरुन यानी गाय, बैल, मुर्गी, मुर्गा वगैरह जो भी है वो इसमें आते हैं गैर आकिल में। यहाँ पे मिसालें दी हुई है, इंसानों की मिसालों में यहाँ पे मोहम्मद और अहमद दिया हुआ है, और इसी तरह फरिश्तों की मिसाल में जो है जिब्रील दिया होगा शायद, और इसी तरह जो है अल्लाह, जो है अल्लाह के मुख्तलिफ नाम भी हो सकते हैं, रहमान, गफ़ार वगैरह जो नाम है वो इसमें आ सकते हैं। इसी तरह नबातात में तुशनार, तुशनार हम बोलते हैं चिनार को, चिनार को हम तुशनार बोलते हैं।
और जमादात में से हजरुन लिखा हुआ है, हयवानुन में से बकरतुन लिखा है। हजरुन मतलब पत्थर, स्टोन, और बकरतुन कौ, गाय। तो ये इसम की तकसीम है किस एतबार से कि कौन सा इसम जो है जिसमें अक्ल होती है और कौन सा इसम है जिसमें अक्ल नहीं होती है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ते हैं इसकी वजह है, लेकिन सबसे पहले हम चंद मिसालें पेश करेंगे। आकिल की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। आकिल में लिखा यहाँ पे मोहम्मद, आयशा, वलदुन, फहीमुन, मुहंदिसुन, तालिबुन। और गैर आकिल में आप देखेंगे कलमुन, किताबुन, मकतबुन, मिरवाहतुन, हकीबतुन, दज्जाजतुन। तो ये आप देख रहे हैं गैर आकिल की कैटेगरी में। तो इसमें आप देखेंगे मुहम्मदुन, आयशतु, वलदुन, फहीमुन, मुहंदिसुन, तालिबुन, मुदर्रिसुन। ये मोहम्मद एक इंसान है तो इंसानों के पास अक्ल है। आयशा तो ये भी इंसानों में आती हैं। वलदुन ये भी इंसानों में आता है। फहीमुन ये किसी लड़के का नाम है तो ये भी आता है इंसानों में। मुहंदिसुन इंजीनियर ये भी इंसानों में आता है। तालिबुन ये एक स्टूडेंट ये भी इंसानों में आता है। मुदर्रिसुन ये भी इंसानों में आता है। तो ये सब क्या है, आकिल। गैर आकिल में कौन लोग आते हैं, क्या 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 चीजें आती हैं। आकिल में लोग आते हैं, गैर आकिल में चीजें आती हैं। कलमुन किताबुन, कलमुन पेन, किताबुन बुक, मकतबुन टेबल, मिरवाहतुन फैन पंखा, हकीबतुन बैग, दज्जाजतुन मुर्गी, बकरतुन गाय कौ। तो ये गैर आकिल में आते हैं, इनके पास अक्ल नहीं होती। कुछ लोग शायद ये समझ रहे हैं कि आकिल का मतलब है जानदार लिविंग, और गैर आकिल का मतलब है शायद जो जानदार नहीं है, नॉन लिविंग। नहीं, ये वो मुराद नहीं है। हमारी मुराद है आकिल से जिनके पास अक्ल होती है, जो सोचने की क्षमता रखते हैं, रीजन जिनके पास है। और गैर आकिल जो सोचने की सलाहियत नहीं रखते हैं। इसमें मुर्गी भी आएगी, इसमें मुर्गा भी आएगा, इसमें गाय भी आएगी, इसमें बेल भी आएगा। तो वो लिविंग है लेकिन आकिल नहीं है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह है कि हमने सीखना है इसके बाद कि हम अगर इनके बारे में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे और कौन सा सेगा हम इस्तेमाल करेंगे। कबल इसके कि हम आगे चले, हम थोड़ी बहुत इस पे प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो आकिल है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं और गैर आकिल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। आकिल में हमने पहले कहा इसमें इंसान, जिन, मलक और अल्लाह आता है। नबातात, जमादात और हैवानात जो है वो गैर आकिल में आते हैं। अब इसमें देखें आप कि हमने ये क्यों पढ़ा। जब हमने आकिल के बारे में पूछना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं मन। जैसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है तो मैं आपसे पूछता हूं मन हाजा, ये कौन है। जिस तरह उर्दू में कौन इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेजी में हु इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह अरबी में मन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे सामने एक बंदा है, अंग्रेजी में हमने पूछना है कि ये कौन है तो हम इस्तेमाल करते हैं हु इज दिस। हु इज दिस, हु इज दिस के बदले हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं मन हाजा। लेकिन अगर ये इंसान नहीं है, कोई गैर आकिल चीज है, जैसे पेन है, तो हम ये नहीं कहेंगे हु इज दिस। पेन के बारे में हम कहेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस के बदले हम इस्तेमाल करते हैं अरबी में मा हाजा, मा हाजा। हाजा हाजा कॉमन है, फर्क है सिर्फ मन और मा में। मन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने सवाल पूछना हो आकिल के बारे में, और माँ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने सवाल पूछना हो गैर आकिल के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मन अदातु इस्तिफहाम तुस्तअमलु लिल आकिल। मन एक क्वेश्चन पूछने का एक आला है, तुस्तअमलु जिसको इस्तेमाल किया जाता है लिल आकिली अक्लमंद के लिए। जैसे एक आदमी है तो सवाल हमने जब इसके बारे में पूछना है तो हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है।
اور हमारा जवाब होगा हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। इसी तरह माँ जो है ये है अदात इस्तिफाम तुस्तअमलु लिगैरिल आकिल, इसको इस्तेमाल किया जाता है गैर आकिल के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे हाथ में एक कलम है तो मैं पूछता हूँ मा हाजा, ये क्या है? आपका जवाब है हाजा कलमुन, ये एक कलम है, ये एक पेन है। तो आपके सामने जो ये बात थी कि मन और माँ में क्या फ़र्क है, मेरे ख्याल से ये बात भी वाज़िया हो चुकी है। मन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने आकिल के बारे में पूछना हो, और माँ हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हमने गैर आकिल के बारे में पूछना हो। सेम इज़ द केस इन इंग्लिश एंड सेम इज़ द केस इन उर्दू। आपके सामने एक स्क्रीन पे कुछ सवालात आ रहे हैं, तो आप इनको देखिए। अल मुज़क्कर अल आकिल, जब हमने पूछना है मुज़क्कर के बारे में और वो आकिल हो, तब हम क्या कैसे सवाल करेंगे? हम कहेंगे मन हाजा, मन हाजा, मन हाजा। तो इसका मतलब है कि हम सवाल पूछ रहे हैं मन, इसका मतलब हम आकिल के बारे में सवाल कर रहे हैं, और हाजा का मतलब ये है कि हम जो ये सवाल कर रहे हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं एक मुज़क्कर के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि हाजा जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमने मन का इस्तेमाल किया तो ये बात वाज़ेह हो गई कि हम एक आकिल के बारे में पूछ रहे हैं, और जब हमने हाजा का इस्तेमाल किया तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हम मुज़क्कर के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए देखिए जवाब क्या लिखा है यहाँ पे। सवाल आप एक बार फिर देखिए, मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुहंदिसुन, ये एक इंजीनियर है। तो जवाब में आपने देखा कि उन्होंने फिर से हाजा इस्तेमाल किया, क्योंकि मुज़क्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मुहंदिसुन, ये आप देख रहे हैं कि ये इंसानों में से है, इसके पास अक्ल है, तो हम इस्तेमाल करते हैं जवाब में एक अक्लमंद इंसान। क्यों? क्योंकि सवाल में आया था मन हाजा, मन इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह आप दूसरी मिसाल देखिए, मन हाजा, ये कौन है? और जवाब में लिखा है हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। सवाल में मन आया, इसलिए आप देख रहे हैं कि जवाब में तालिबुन है। अगर सवाल में मन नहीं होता बल्कि माँ होता, माँ हाजा, तब जवाब हाजा तालिबुन कतअन नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि सवाल में माँ है, और माँ गैर ज़विल उक़ूल के लिए होता है, गैर आकिल के लिए होता है। तो चूंकि मन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जवाब में भी तालिबुन आया, जो कि एक अक्लमंद है। और माँ को आप देख रहे हैं, तो माँ हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमने गैर आकिल के बारे में पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, किसी जगह के बारे में पूछना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं माँ। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे लिखा है हाजा भी, तो हाजा चूंकि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी ये बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि जब हम कहेंगे मा हाजा, दो चीज़ें सामने आती हैं। एक, ये जो सवाल किया जाता है ये गैर आकिल के बारे में होगा। दूसरी बात, हाजा का इस्तेमाल करके हमें ये पता चलता है कि ये सवाल किसी मुज़क्कर चीज़ के बारे में है। तो आप देख रहे हैं मा हाजा, हाजा कलमुन, ये क्या है? ये एक कलम है। इसी तरह आप देखिए अगले पेज पे, यहाँ पे लिखा है अल मुज़क्कर गैरुल आकिल। मुज़क्कर है तो हाजा इस्तेमाल होगा, गैरुल आकिल है तो सवाल में माँ इस्तेमाल होगा। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो मन था, क्यों? क्योंकि वो आकिल था। हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो मुज़क्कर था। यहाँ पर भी हम हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये भी मुज़क्कर है। आप देखिए मा हाजा, ये क्या है? हाजा किताबुन, ये एक किताब है। किताब गैर आकिल है, इसलिए सवाल में मा आया। इसी तरह मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। तो मिफ्ताहुन की, ये मुज़क्कर है और ये गैर आकिल है, इसलिए सवाल में मा हाजा आया। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है तदरीबुन, तदरीबुन के मतलब है एक्सरसाइज। तो सवाल है मन हाजा,
मन हाजा, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है कि इसमें क्या सही जवाब आएगा। मन हाजा, जवाब क्या आएगा? هذا طبيب. हाजा तबीब। अब मेरा सवाल ये है, हाजा किताबुन क्यों नहीं आएगा? किताबुन गैर आकिल है, जबकि सवाल में ये है कि मन हाजा, मन आकिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सवाल में मन इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है कि जवाब में भी किसी आकिल का ही तज़किरा होना चाहिए। अगला सवाल है मन हाजा, और यहाँ पे लिखा है هذا مدرس. फिर दो ऑप्शन है, मिफ्ताहुन और मुदर्रिसुन। जवाब क्या आएगा? हाजा مدرس. مدرس. बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मा हाजा, जवाब में लिखा है हाजा هذا محاضر. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مكتب. तो सही जवाब है हाजा मकतबुन। क्यों? क्योंकि मकतबुन मा गैर आकिल है और सवाल में आया غير عاقل. माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मुहाजिर इसका जवाब नहीं हो सकता है। अगला सवाल है मन هذا طالب. हाजा طالب. तालिबुन, هذا طالب. हाजा तालिबुन। तो इस तरह की बात वाज़ेह होगी कि जो मन है वो हम आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो माँ है ये हम गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। माँ गैर आकिल के लिए और मन आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई है। अब ये जब बात वाज़ेह हो गई है, इसके बाद हम अगले नुक्ते की तरफ जाएंगे, वो है हाज़िही, जो कि हमने पहले भी बयान किया कि हाज़िही हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाज़ा मुज़क्कर के लिए और हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे है हाज़िही बिन्तुन, ये एक लड़की है। अगर ये लड़का होता तो यहाँ पे लिखा होता हाज़ा वलदुन, क्योंकि बिन्तुन मुअन्नस है इसलिए हमने हाज़िही का इस्तेमाल किया। जैसे फातिमा हो, आयशा हो, तबीबतुन हो, मुदर्रिसतुन हो, इनके साथ हम हाज़िही का इस्तेमाल करेंगे। और इनके बारे में अगर हमने सवाल करना है तो हम पूछेंगे मन हाज़िही, ये मुअन्नस है और ये आकिल है। आकिल होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे मन, और मुअन्नस होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे हाज़िही। तो सवाल इस तरह से ये बन गया, मन हाज़िही, ये कौन है? मन हाज़िही, ये कौन है? तो जवाब में हम इस्तेमाल करेंगे हाज़िही मुहंदिसतुन, हाज़िही मुहंदिसतुन, ये एक फीमेल इंजीनियर है। इसी तरह अगर हमारा सवाल होगा मन हाज़िही और यहाँ पे कोई फीमेल स्टूडेंट होगी तो हम कहेंगे हाज़िही तालिबतुन, हाज़िही तालिबतुन, ये एक फीमेल स्टूडेंट है। तो इसमें हमने दो बातें याद जहन में रखनी है। एक ये कि आकिल होने की वजह से जब हम सवाल पूछेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे मन, और मुअन्नस होने की वजह से हमने इस्मुल इशारा हाज़िही इस्तेमाल करना होगा। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अब देखें मुअन्नस गैर आकिल के बारे में अगर हमने सवाल पूछना है, अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे मुअन्नस ही, लेकिन आकिल तब हमने मन इस्तेमाल किया। अब मुअन्नस है तो मुअन्नस होने की वजह से हम हाज़िही बोलेंगे, और गैर आकिल होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे माँ। तो पहला सवाल है मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही सबूरतुन, ये एक बोर्ड है। तो माँ गैर आकिल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबूरतुन, वो भी एक गैर आकिल है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा है मा हाज़िही, हाज़िही सबूरतुन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह आप अगले नुक्ते की तरफ देखिए, मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही हकीबतुन, ये एक बैग है। तो हकीबतुन बैग के बारे में जब सवाल किया गया जो कि गैर आकिल है तो उन्होंने इस्तेमाल किया है मा हाज़िही
जो कि बिल्कुल सही है। अब तदरीबात आपके सामने है, इनका आप जवाब देंगे। लिखा है मन हाज़िही, मन हाज़िही, और जवाब में लिखा हाज़िही तबीबतुन, हाज़िही, दो ऑप्शन है, हाज़िही तबीबतुन तबीबतुन या हकीबतुन। तबीबतुन। तबीबतुन तो यहाँ पे जो मुवाफिक जवाब है वो है तबीबतुन। अगर हम अलग देखेंगे, हाज़िही तबीबतुन अलग जुमला इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही जुमला है। हाज़िही हकीबतुन अलग जुमला इस्तेमाल करेंगे तो ये जुमला भी बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि सवाल में यहाँ पे है मन हाज़िही, तो सवाल के अकॉर्डिंग ही हमने जवाब देना होगा, और सवाल में चूंकि मन इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम जवाब में बोलेंगे हाज़िही तबीबतुन। इसी तरह एक और सवाल है मन हाज़िही, हाज़िही डैश डैश कलंसुवतुन टोपी को बोलते हैं, कैप को बोलते हैं, और मुदर्रिसतुन फीमेल टीचर को बोलते हैं। चूंकि सवाल में मन इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम बताएंगे जवाब में हाज़िही मुदर्रिसतुन, ये एक फीमेल टीचर है। इसके बाद एक और सवाल है मन हाज़िही, मन हाज़िही ये कौन है? तो जवाब आपको देना होगा कि हाज़िही तालिबतुन तबीबतुन, तालिबतुन, हाज़िही तालिबतुन। एक और सवाल है मा हाज़िही, जवाब हाज़िही सबूरतुन हाज़िही सबूरतुन, सबूरतुन। इसी तरह तदरीब आम जनरल एक्सरसाइज है, इसमें सब कुछ जो है खलत मलत किया गया होगा, आपने ध्यान रखना होगा। मा हाज़ा, जवाब अब कोई भी जवाब दे सकता है। हाज़ा मिफ्ताहुन हाज़ा 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 तबीबतुन। ने बोला है हाज़ा तालिबुन, तो तालिबुन क्या है यहाँ पे? ये गलत होगा, आकिल है, क्योंकि मन हमने इस्तेमाल करना होगा तब जब हम सवाल करेंगे किसी आकिल के बारे में। इसी तरह मन हाज़िही, जवाब क्या होगा? हाज़िही तालिबतुन, हाज़िही तालिबतुन। इसी तरह मन क्या हम पूछेंगे, जवाब में हाज़ा तबीबुन, सवाल में क्या होगा? मन हाज़ा। मन। मन हाज़ा। इसी तरह एक और सवाल है नीचे,